Hello students. So now today we will start next chapter, chapter number 6, work, power and energy. This is not new for you. You also learned that chapter or discussed that chapter in class 9th. That the chapter name is work, power and energy. One by one we will discuss all these three: work, then power, then energy. So the first is work. So in general, what is the meaning of work? If you are reading, you are sitting, you are eating, and even cooking food in kitchen, all these are work in general. But in physics language, this is not said to be a work. फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम वर्क नहीं कहते. सो व्हाट इज वर्क इन द फिजिक्स लैंग्वेज, और वी कैन व्हाट इज वर्क इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स. मीन्स फिजिक्स की फॉर्म में वर्क क्या होगा. सो इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स द वर्क इज सेड टू बी डन. कि हम वर्क कहेंगे कि कोई काम हो रहा है. कब? इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी and body displays, then work is said to be done. So what is the meaning of work in physics? So if this is a body, clear, it is point A, a force F is applied on it and body reach to point B and it displays through a displacement S. So we will say that ki work is done. So what is work? If we apply a force on a body and body displays, the work is said to be done. Means in physics the work is said to be done if we apply a force on a body and body displays, then work is said to be done. So what is work? So the W represent the work. It is equal to F dot S, where F is the force and S is the displacement. Clear? Due to this work. So if we apply a force and there is no displacement, so no work is said to be done. For example, if you want to push a heavy object but that heavy object is not displaced from its position, means जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, तब हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो जीरो है. सिंपल सी बात एक कि इफ यू आर होल्डिंग अ बैग, if you holding a bag and remain stationary or one point, means your body tired, some work you are doing, but in physics you didn't displace from your position or you didn't displace the bag from its initial position to any other position, so the work is not said to be done. कि तब हम वर्क नहीं कहेंगे. तो ये आपका पहला पॉइंट था कि वर्क क्या है, what is work, and when we say that कि work is done. So from here, so work is W is equal to F dot S is work in general. So now unit of work, यूनिट क्या होगी वर्क की. सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज मीटर, सो यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. सो द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर एंड दीज इट इज एसआई यूनिट. मींस द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर विच इज नोन एज जॉल, जिसको हम कहते हैं जॉल. क्लियर? अब यहां से पहला पॉइंट आता है कि डिफाइंड वन जॉल, कि कब कहेंगे कि एक जॉल वर्क डन हुआ. तो पहला पॉइंट आपका यहां पे आ गया, डिफाइन वन जॉल. तो वन जॉल क्या है? सिंपल कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस 1 मीटर, द वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल. मींस इफ दैट एफ इज 1 न्यूटन and that S is 1 meter, so that W is said to be 1 joule. Means जब किसी बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी आपकी 1 मीटर डिस्प्लेस होगी, उस टाइम जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को हम बोलेंगे 1 joule. उसके बाद इट इज SI यूनिट. नाउ व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ joule? सो सिंपल CGS, in CGS the force is measured in the form of dyne. So the force is measured in dyne. Clear? And this is centimeter and this dyne centimeter is known as arc. So arc is the CGS unit of work. तो ये आपका था work. So now next we have to write the expression for the work. This is a general expression. W is equal to F into S.
क्लियर. सो नाउ देयर इज अ रोल ऑफ एंगल आल्सो, कि वर्क डन में कि आप किस एंगल से फोर्स लगा रहे हो, उस एंगल का भी रोल है. सो नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंगल इन द वर्क डन. So what is this? कि if this is a body, clear, this is any body, clear, a force F is applied on a body. This is a force F which is applied on a body. It make an angle theta with the horizontal. कि जो इस horizontal direction है इसके साथ जो ये angle बना है ये theta बना है. Clear? So previously we have discussed many times resolve. So we will resolve this F into two component. One is horizontal, another is vertical. So its vertical component is F sin theta and horizontal is F cos theta. Clear? So now from here what we have to do that कि the body is move horizontally, कि when we apply this force on a body, that body displays horizontally, means there is नो मोशन वर्टिकली. मीन्स जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया ये बॉडी आगे की तरफ गई ना कि ऊपर की तरफ. तो अगर ये ऊपर की तरफ नहीं गई मीन्स द कंपोनेंट विच इज वर्टिकली अपवर्ड दैट इज जीरो. मीन्स एफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वेट था वो नीचे की तरफ किया था mg. सो दिस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका mg के था एंड एफ साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू जीरो. मीन्स जो नेट फोर्स था वर्टिकल में वो जीरो था. तो ये आपका मान लो नेट फोर्स है वर्टिकल, तो जो एफ वर्टिकल है वो आपका जीरो है. लेकिन बॉडी क्या है डिस्प्लेस हुई है हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरफ वो गई है. इसका मतलब इस फोर्स की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुई. और वी से दैट कि दिस बॉडी रीच हियर एट दिस पॉइंट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स and this displacement is S. So what is work? So work is W is equal to F S, but we know that in this case due to the component of force or the component of force due to which the body displays is F cos theta. So this W can be written as F cos theta into में S, or simply W is equal to Fs cos theta. So here is also the role of this angle. So if this theta is equal to 0, अगर ये थीटा क्या है जीरो है. अब थीटा जीरो का मतलब ये है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही है. तो इस केस में अगर थीटा जीरो है तो वी ऑल नो दैट द कोस जीरो इज इक्वल टू 1. योर वर्क इज एफ डॉट एस. क्लियर? इफ योर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर. सो फ्रॉम हियर इफ वी राइट कोस 90, यू ऑल नो कोस 90 आपका होता है जीरो. अब इस केस में क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो व्हेन वी पुट हियर cos 90, so this W become 0. Means when the force and the displacement are perpendicular to each other, in that case the work done is 0. So if that theta is equal to 180 degree, अगर थीटा 180 होगा तब क्या होगा? तो we all know that cos 180 is minus 1. So this W is equal to F dot S cos 180. So W comes out to be minus Fs. So in that case the W is negative, means work done is negative. Clear? In case of 0 the work done is positive. In case of 90 the work done is 0. Means we have discussed three type of work done: positive work done, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन. तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और जीरो क्या है? कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया
बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है तो उस वर्क को हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अगर आपकी कोई बॉडी फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट ये मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, सो द एंगल इज 180 and the work done is negative. But if force and displacement are perpendicular, then work done is 0. So we will discuss few example of work done positive, negative and 0. The simplest example is tug and war. टग एंड वॉर में क्या होता है, दो टीम होती है, इसको रस्सा कस्सी कहते हैं, रस्सा कस्सी का खेल। ये एक टीम इधर है, एक टीम इधर है। इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर देयर आर द टू टीम्स which are applied force on the rope. क्लियर? कि ये आपकी कोई पॉइंट था, यहां पे टीम ए है, यहां पे टीम बी है। जो टीम ए है उसका फोर्स है एफ और जो टीम बी है उसका फोर्स है एफ बी। तो इस केस में क्या देखा, टीम ए उधर खींच रही है और टीम बी इधर खींच रही है। So if we say that कि टीम A is winning, कि टीम A आपकी विन कर रही है, तो आप क्या देखोगे कि टीम A की फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और जब ये जीतेंगे तो यू नो द प्लेयर ऑफ टीम A आल्सो मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ये फोर्स भी पीछे की तरफ है और इनकी डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है। तो यहां से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर? सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, वी से दैट दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ टीम बी जो फोर्स था वो पीछे की तरफ है, बट ड्यू टू पुल ऑफ दीज टीम ए प्लेयर द टीम बी मेंबर मूव इन दैट डायरेक्शन। सो ये डिस्प्लेसमेंट किसकी, एस की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब इस केस में हम देखते हैं ये एस इधर है और एफ इधर है, तो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। सो जो ये टीम आपकी काम कर रही है यहां पे आपका है नेगेटिव वर्क डन। और वो पॉइंट जब आपकी दोनों टीमों का फोर्स क्या था, बराबर था। ना ये टीम इधर जा रही ना ये टीम इधर, मींस बोथ आर वी कैन से दैट ऑन देयर पोजीशन। और ये आपकी रस्सी का जो ये पॉइंट था ये ओ पे ही था, तो इस टाइम जो वर्क डन था वो 0 था। हम कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जीरो वर्क डन से। इफ एनी पर्सन होल्डिंग अ बैग ऑन हिज हेड, कि जो बैग है वो हेड के ऊपर है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन वो आगे की तरफ ही चलता जा रहा है। क्लियर? तो जो फोर्स है बैग को होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। तो जो फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो दिस एंगल इज 90। अगर एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो वी हैव डिस्कस इफ एंगल इज 90 द वर्क डन इज 0। सो दिस वी हैव डन 3 टाइप ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। पहले याद रखना है अगर एंगल 0 है तो पॉजिटिव, एंगल 180 तो नेगेटिव, एंगल 90 तो 0। दूसरा केस, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जीरो वर्क डन। सो दिस वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ एंगल, कि हाउ द एंगल इफेक्ट द टाइप ऑफ वर्क डन। क्लियर? एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस लेटर अबाउट मोर अबाउट द वर्क। क्लियर? सो वी विल सी कि नेक्स्ट पार्ट की वेरियस अदर डिस्कशन अबाउट द वर्क। सो नाउ द वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वेक्टर था चैप्टर में। वी विल रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इन द फॉर्म वेक्टर आई जे के। तो सिंपल इज दैट कि दिस इज योर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर? अ बॉडी इज एट ओरिजिन, कोई बॉडी क्या है, ओरिजिन के ऊपर है। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट, कि कोई फोर्स है इसके ऊपर एफ अप्लाई कर दिया, एंड दैट बॉडी रीच दिस पॉइंट, ये बॉडी यहां पहुंच गई, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी। क्लियर? एंड
दीज आर कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये पॉइंट है वो कहां से गई है 0,0 से वो एक्स वाई जेड पे चली गई. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर दिस इज x minus 0 I cap plus y minus 0 j cap plus z minus 0 k cap. So this is the displacement vector and f is applied in 3 dimension. यहाँ पे जो f है अब तक जो हमने केस किया था उसमें 2 dimensional थी. अब अगर f 3 dimension में होगा तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे? दैट इज fx I cap fy j cap प्लस fz k cap. और सिंपली इसको अगर सिंपल करेंगे तो यहां से 0 खत्म हो जाएगा आपका ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा x I cap y j cap and z k cap. तो दिस इज योर. नाउ वी ऑल नो दैट द वर्क डन इज f dot s cos theta. In that case the direction of force and displacement is same. So this theta is 0, so cos 0 1, then your w comes out to be f dot s. So what we have to do? We have to do the dot product of force and displacement. Dot product पढ़ा था हमने कि जो सेम वेक्टर होंगे i का 1 होगा, j का 1 होगा, k का 1 होगा. तो ij ik ji jk का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा. सो अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा fx डॉट x प्लस मीन्स इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन. i डॉट i आपका हो गया 1. वी नो दैट i डॉट i 1 होता है, j डॉट j आपका 1 होता है, k डॉट k आपका 1 होता है. यहां पे आपका आ गया fy डॉट y प्लस fz डॉट z. और इन द सिंपल फॉर्म इट कैन रिटन एज x fx प्लस y fy प्लस z fz. So this is the representation of work done or calculation of work done in the rectangular component. So this is your topic, work done in the form of rectangular component, means work done in the form of I, J and K. Next we will discuss work done by the variable force. Next is work done by a variable force. प्रीवियसली वी डिस्कस दैट कि कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग. कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या कि ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है. मींस हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना शुरू किया और बॉडी के ऊपर जब तक बॉडी मोशन में थी उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई होता रहा, तो वो जो आपका फोर्स था वो था कांस्टेंट. नाउ इन दैट केस वी विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मींस फोर्स को हम कभी ज़्यादा कर रहे हैं, फोर्स को कभी हम कम कर रहे हैं. तो उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा? तो इसके अंदर पहले लिखा लेट अस कंसीडर अ बॉडी. क्लियर? अ वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स. सो फॉर दैट वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. सो इफ वी से दैट कि दिस इज द ग्राफ. According to your book this graph is like this. Clear? This is fx and this is your displacement s. Means अब ये x का मतलब ये है कि that force act in horizontal direction and body displace. If we say that कि this is the initial position of the body and this is the final position of the body. So for that we have to find the work done between the initial position to the final position. Means we have to find that कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन हुआ उसके ऊपर. This we have to calculate. So here we plot the graph between the fx means force and the displacement. यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस फुल पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप में. तो मैंने यहां से एक स्ट्रिप ले लिया ऐसे लाइक दिस कि ये आपकी कुछ स्ट्रिप है जिसकी जो यहां पे थिकनेस है वो है डेल्टा एक्स मीन स्मॉल.
क्लियर, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। तो जो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा, द वर्क डन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स एक्ट करे एफ एक्स, तो जो वर्क डन होगा वी ऑल नो दैट कि W इज इक्वल टू एफ इंटू में एस इंटू में कोस थीटा। अब सेम डायरेक्शन है, थीटा आपका 0, तो थीटा अगर 0 है तो W आपका आ गया एफ इंटू में एस। लेकिन अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, वो डेल्टा एक्स है, तो जो वर्क डन भी होगा आपका दैट इज डेल्टा W इज इक्वल टू एफ इंटू में डेल्टा एक्स। अब जो डिस्प्लेसमेंट थी वो डेल्टा एक्स थी, तो दिस इज द वर्क डन फॉर दिस स्ट्रिप। और अगर मैं यहां से देखूं बेटा कि ये वैल्यू, ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक रेक्टेंगल भी बन गई यहां पे, रेक्टेंगल। अगर ये कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल है, अगर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है आपकी, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो जो आपका वर्क डन आया वो आ गया एरिया अंडर दी कर्व, मींस इस कर्व के अंडर एरिया। सो दिस इज, इफ वी विल कैलकुलेट दिस एरिया वी सिंपली फाइंड द वर्क डन। तो अगर यहां पे ऐसी मैं बहुत सारी स्ट्रिप ले लेता हूं जिनकी सबकी है डेल्टा एक्स, मींस मैंने एक के लिए निकाल लिया, वी से दैट कि यहां पे बहुत सारी स्ट्रिप ऐसे करके। तो अगर मैं पूरे का निकालना चाहता हूं यहां तक, तो अगर मैं इन सभी को प्लस कर दूं, मींस पूरा W किसके इक्वल होगा, समेशन, क्लियर, समेशन मींस सबका सम, किसका सम, F इंटू में डेल्टा एक्स, कि सबके ऊपर फोर्स F लगा है और डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा एक्स है, क्लियर। और यहां पे अगर हम लिख देते हैं x की जो वैल्यू है वो हम 0 से लेके, या लिखनी है लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो नो प्रॉब्लम। तो अगर हम यहां पे कह देते हैं कि दिस इज योर वर्क डन, समेशन कर दिया हमने, सभी स्ट्रिप को ऐड कर दिया, क्लियर। और ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप। अब ये जो इक्वल था ये तो था सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया, अब अगर समेशन आ गया तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप। कहां से कहां तक स्ट्रिप है, जो आपकी एक्स आई से लेके एक्स एफ तक की स्ट्रिप है। पहली स्ट्रिप कौन सी स्ट्रिप थी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्लियर। सो अगर मैं यहां से कह देता हूं कि इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, मीन्स आपका डेल्टा एक्स क्या है, लगभग 0 के बराबर है। तो अगर ये स्ट्रिप आपकी बहुत ही फाइन हो जाएगी, दिस स्ट्रिप इज वेरी फाइन लाइक दिस, सो देर आर इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिप, यहां पे बहुत सारी क्या हो जाएंगी, स्ट्रिप हो जाएंगी इनफाइनाइट। सो अगर हम यहां कह देते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, मीन डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत स्मॉल हो गया, तो उस केस में अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो यहां पे आएगी इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ, दैट इज एफ इंटू में dx, क्लियर। यहां पे dx भी लिख सकते हो, यहां पे आप डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, क्लियर। तो याद रखना आपने कि जब भी आपका कोई भी क्वांटिटी जब आपकी अप्रोचेस टू 0 होगी, वहां पे आपकी बहुत सारी स्ट्रिप हो जाएंगी, इनफाइनाइट स्ट्रिप हो जाएंगी। तो अगर वहां पे स्ट्रिप इनफाइनाइट हो जाएंगे तो उस केस में आपका यहां पे आएगा, ये साइंस को कहते हैं इंटीग्रेशन, क्लियर। अब इंटीग्रेशन में आपका क्या पॉइंट समझना है कि वी विल फाइंड फॉर द स्मॉल एरिया, कि किसी भी स्मॉल स्ट्रिप के लिए निकालेंगे, और अगर हमने बड़े के लिए निकालना है तो सिंपली वी विल इंटीग्रेट। पॉइंट समझना है कि अगर आप किसी पूरी बड़ी क्वांटिटी के लिए फाइंड करना चाहते हो तो जस्ट यू हैव टू फाइंड फॉर द स्मॉल, एंड फॉर दैट स्मॉल यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। जैसे हमने यहां पे क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, सिर्फ एक स्ट्रिप का हमें पता था, स्मॉल एरिया का हमें पता था, लेकिन अगर ज्यादा का निकाला तो वी विल इंटीग्रेट इट। तो जो वर्क डन आया वो आपका, अब अगर हम देखते हैं यहां से यहां तक का, तो ये आपका आ गया दैट इज एरिया अंडर दी
कहां से कहां तक का एरिया है ये। अब एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, कहां से कहां तक कर्व आपकी, ये यहां से यहां तक की कर्व का आपका एरिया आ गया। तो अब याद रखना कि इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया फॉर द वेरिएबल फोर्स, यू जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। क्लियर। तो ये आपका था वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स। आसान था, एक बार देखोगे इसको, दोबारा सुनोगे, समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी के ऊपर कि व्हाट इज एनर्जी। सो नेक्स्ट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। मीन्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी एंड इट हैज द सेम यूनिट एज अ वर्क, कि जो यूनिट वर्क की थी वो यूनिट किसकी होगी, एनर्जी की होगी। यूनिट ऑफ एनर्जी जाउल, बिकॉज यूनिट ऑफ वर्क इज आल्सो जाउल। मीन्स कोई पर्सन कितना काम कर सकता है वो उसकी एनर्जी है। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, उसको हम एनर्जी कहेंगे। एंड इट्स यूनिट एंड डिमेंशन फॉर्मूला विच वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर सेकंड, द डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेरियस एनर्जी एंड वर्क इज सेम। After that, कि what are the various type of energy? So in our surrounding, various type of energy are existing: heat energy, sound energy, light energy, clear, nuclear energy, clear, kinetic energy, potential energy. So there are the various form of energy around us, clear. So all the energy have the same unit, but mainly we have to discuss about the two type of energy: the kinetic energy and the potential energy. So what is kinetic energy, what is potential energy, and what is the sum of kinetic energy and the potential energy? ये सारा क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था। So what is kinetic energy, what is potential energy, this we have to discuss in the later part of this chapter. But first is what is the sum of kinetic and potential. The sum of kinetic and potential is known as mechanical energy, कि जब हम kinetic energy को और potential energy को दोनों को प्लस करेंगे, उनको दोनों को टोटल करने से जो एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी और एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मीन्स जो भी एनर्जी किसी बॉडी के अंदर है उसके मोशन की वजह से उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। So what is kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. Moving wind, moving vehicle, कोई भी जो moving object है उसकी kinetic energy है। तो various example you can write here in your book. One is given: moving vehicle have kinetic energy, moving wind have kinetic energy, moving water have kinetic energy, moving bullet have kinetic energy, moving hammer having kinetic energy. Means जो body move कर रही है उसकी kinetic energy है। Clear? So now next we have to derive the derivation for the kinetic energy. Basically we know that the kinetic energy in the class 9 is written here mv square, half mv square, this we have written. And this for that we also derive expression, इसके लिए हमने expression भी derive किया था kinetic energy के लिए। Clear? So what is that expression for kinetic energy? This we have to derive. So again if we say that कि this is a horizontal surface, a object of mass m is lying on it. Clear? A force F is act on that object is at point A. Clear? It is at rest, so its initial velocity we write here u, which is equal to 0. After the application of force, this object reached to point B. This is point B and it displaced by a displacement of s. Clear? And having velocity v. मास इसका सेम ही रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड द एनर्जी। अब यहां पे एक बात याद रखें कि जब कभी भी आपको एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। मीन्स इफ यू कैलकुलेटेड द वर्क डन, अल्टीमेटली यू आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी, कि जब आपने वर्क डन निकाल लिया तो कहीं ना कहीं आपने एनर्जी को भी फाइंड कर लिया है। सो व्हाट इज दैट? सो वी ऑल नो दैट F इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसकी S हो रही है। सो व्हाट इज वर्क डन? तो W इज इक्वल टू F डॉट S कोस थीटा।
फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या सेम है, तो ये फिर से आपका cos 0 आपका हो गया 1. So we all know that from the second law F is equal to ma. कहां से आया ये आया आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो W आपका बन गया यहां से ma इंटू एस. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द S. अभी S कहां से आएगा, कोई मुश्किल नहीं यहां से निकालना. U आपको दिखाई दे रहा है, V आपको दिखाई दे रहा है, S आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए. वो इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. थर्ड इक्वेशन. सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इनिशियली ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था. अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा तो आपका जो u था वो 0, द v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो अगर हम यहां से अब क्या करते हैं, v स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू s. सो नाउ पुट दिस s वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो w comes out to be ma into में v स्क्वायर बाय 2a. दिस a cancel with a. Here w comes out to be half mv square. And we all know that the work done is equal to energy. Which energy? Kinetic energy. So the kinetic energy comes out to be half mv square. So this is your derivation for the kinetic energy. और यहीं से आपका एक और डेरिवेशन मिलेगा जिसको हम कह देते हैं डेरिवेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम. कि अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अब यहीं से आपको बता दूंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है. क्लियर. सो हम डिस्कस कर रहे हैं अब आपके यहां पे, वो है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम. अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, मींस वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल. मीन वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. वी हैव अ रिलेशन कि वर्क एंड एनर्जी हैव अ रिलेशन. सो दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम. उसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है ये, कोई नई बात नहीं है, अभी डिस्कस किया तो वैसे ही है. ये आपका कोई ऑब्जेक्ट था, मास इसका m था, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F. पहले हमने कहा था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, बट वी से दैट कि इट हैव अ इनिशियल वेलोसिटी u. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. दिस फोर्स F is applied on it and body reached to point this having mass m है. At that time its velocity v and the displacement is again s. This is position A and this is position B. We have to calculate the work done. So we all know that the W is equal to F dot S cos theta. तो एंगल 0 cos 0 1, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया. After that W is equal to F dot S. So यहां से अगर हमने F की वैल्यू निकाली और S की निकाली वही पहले की तरह, तो we all know that F is equal to होता है आपका ma और S निकलेगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से निकलेगा. अब उस केस में u 0 था लेकिन अब u 0 नहीं है, तो यहां से जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डिवाइड बाय 2a. वी हैव टू जस्ट पुट दीज टू वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो w कम्स आउट टू बी m into a in the bracket v square minus u square divided by 2a. So with this a is cancelled and we'll open that bracket. So here comes out to be half m v square minus half m u square. अब दोनों की दोनों आपकी क्या है, दोनों की दोनों आपकी है काइनेटिक एनर्जी. ये भी आपकी क्या है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये कौन सी है फाइनल, ये कौन सी है इनिशियल. सो अब यहां से क्या रिलेशन आई कि द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. अब एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन. दिस इज योर नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम. व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क इज डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम. तो ये आपकी थी टॉपिक
वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम को निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे कैलकुलस मेथड से। वो देखते हैं कैसे निकलेगा काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम कैलकुलस। नाउ वी हैव टू फाइंड अगेन हाफ kinetic energy is equal to half mv square, but by the calculus method. What is calculus? In that we have to find the kinetic energy by integration. Clear? अब इसमें क्या कि वही पहले की तरह let us consider a body of mass m lying on a horizontal surface. A force F is act on the body and body displaced through a displacement of dx. Means उसकी जो displacement है वो dx है. So we all know that what is work done for that? So that work done is dw, क्योंकि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है ज्यादा नहीं, dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही स्मॉल के लिए हमें पता है, ज्यादा के लिए हमने निकालना है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। सो dw इज इक्वल टू f इंटू में dx। क्लियर? सो ये आपका वर्क डन है। अब इस वर्क डन के लिए वी हैव टू डू, स्मॉल हमें पता है तो ज्यादा के लिए निकाले तो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू v के लिए कर देंगे। क्लियर? अब इंटीग्रेशन पहले वी हैव टू पुट दीज वैल्यू। सो वी ऑल नो दैट f इज इक्वल टू होता है आपका m में, f आपका m में होता है, तो यहां पे m एज इट इज होगा। इन द चैप्टर नंबर 3rd एंड चैप्टर नंबर 4th we have discussed about the acceleration. So acceleration is change in velocity. So this a can be written as dv by dt. Means f is equal to ma. In place of a we can write dv upon dt, means change in velocity. So for that here मैंने क्या कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड। क्लियर? जब हम यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट बढ़ेगा? तो यहाँ पे आपका आ गया बेटा dx अपॉन dt। अब dx क्या डिस्प्लेसमेंट, dt क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आपका बन गया वेलोसिटी। सो दिस डेरिवेशन बिकम m इंटू में दिस इज dv डॉट v डिवाइडेड बाय dx। क्लियर? और सिंपली इट विल बिकम mv इंटू में dv divided by dx. So this is in previously in the form of displacement, but now it is changed in the form of velocity. So now put this f value in this equation. So your w dw is equal to 0 to v. In place of f we will write here mv dv divided by dx into में ये पहले का dx. So this dx cancel with dx. So ये आपका आ गया 0 to v m इंटू में d v इंटू में डी। अब इस जो v को हम देख रहे हैं, क्लियर, और ये m को जो हम देख रहे हैं, तो m तो है कांस्टेंट, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, पहले वो रेस्ट में थी, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हमने कह दिया उसकी वेलोसिटी 0 से लेके v पर पहुंच गई। तो ये जो m था ये आपका बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमने सीखनी है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए हम सिंपल सी बात आपको समझाते हैं क्या है। वैसे आपकी ये +2 क्लास में आएगा, इन क्लास +2 यू हैव लर्न अबाउट द इंटीग्रेशन इन द मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? सिंपली कहते हैं, अगर आपने x को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मींस हर एक फंक्शन के साथ कुछ ना कुछ ये होगा साथ में, x को dx के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे आप y को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, जितनी भी उसकी पावर है उसके अंदर +1 और नीचे फिर उसी वैल्यू को आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो x की पावर क्या है 1 है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी x 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। क्लियर? अब हमने क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट v विद रिस्पेक्ट dv। तो इसको हम कर सकते हैं, v को dv के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन अगर v को हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं उसने नहीं होना था। तो व्हाट इज इट्स इंटीग्रेशन? तो m आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका अगर 0 टू v अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा व्हाट इज द पावर ऑफ v, दिस इज 1, तो यहाँ पे आपका आएगा v 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, कहां से कहां तक, 0 से लेके v तक। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, m इसका बन गया आपका यहाँ से v² डिवाइड बाय 2, तो ये 2 आपका क्या आ गया, बाहर आ गया। अब आपने एक बार यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है। अब यहां से जब हम फाइनल रिजल्ट पे आएंगे तो dw का बन गया w,
तो दिस W बिकम हाफ इंटू में m, अंदर एक बार v स्क्वायर माइनस एक बार 0 का स्क्वायर, तो यहां से जो फाइनल रिजल्ट आया हो गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 तो पूरी टर्म आपकी 0 होती, लेकिन अगर यहां से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की फॉर्म में करना था तो यहां पे हम करते फ्रॉम u टू v, यहां पे आता u, यहां पे आता v, तो यहां पे आता हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। सो दिस इज योर kinetic energy by the calculus method. Next is your potential energy. So what is potential energy? The energy possessed by a body by virtue of its position and configuration. Configuration उसकी shape, कि जब बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा, मीन्स वो बॉडी ग्राउंड से ऊपर ग्राउंड से नीचे इन बिटवीन कहीं पे भी वो जाएगी तो उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। दूसरा आपका है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसकी शेप में चेंज। अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो तरह की है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक आपके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या? पहले बॉडी ग्राउंड पे थी, फिर वो कुछ हाइट पे चली गई, या बॉडी पहले कहीं रूफ पे थी, कहीं हाइट पे थी, अब वो नीचे आ गई, तो देयर इज अ पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू इट्स शेप। कैसे? कि कोई रबड़ बैंड है, उसको हमने खींचा, उसकी शेप चेंज होगी, उसको छोड़ दिया, अगेन इट रीगेन इट्स शेप, सो दैट एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बो एंड एरो, बो एंड एरो में जो तीर कमान होता है उसमें जब तीर डालते उसको खींचते हैं तो उसकी स्ट्रिंग खींचती है, शेप में चेंज आता है। सो द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ टू टाइप, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, अनदर इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप। अब आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। द वाटर स्टोर इन द रिजर्वर, की जो डैम है उसका जो रिजर्व में वाटर स्टोर होता है, दैट स्टोर एट हाइट, सम हाइट है उसके ऊपर स्टोर करते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बो एंड एरो डिस्कस की, बो एंड एरो में जब हम खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, तो दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड अनदर एग्जांपल इज स्प्रिंग, जो आपने स्प्रिंग देखा होगा, उसको स्ट्रेच करते हैं, शेप चेंज होती है, छोड़ देते हैं, फिर से शेप को रीगेन कर लेता है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैनी अदर एग्जांपल आल्सो यू हैव सीन, एप्पल और मैंगो लाइंग फ्रॉम हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री हैज पोटेंशियल एनर्जी। अब जो कोई एप्पल है या मैंगो किसी ब्रांच को हैंग कर रहा है, मीन्स कुछ हाइट पे है, वो उसकी कुछ पोजीशन है, तो उसकी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। विच पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। So there are two type of energy, elastic potential energy and gravitational potential energy. So first we have to derive the expression for the gravitational potential energy. So what is that expression? उस expression को देखते हैं हम क्या है। We say that कि this is ground and it is an object which is at height h from the ground. Clear? And that object is left from that height and moving in the downward direction. Clear? And a force act on that object, that force is known as gravitational force. Gravity. What is gravitational force? The force of attraction between the two objects is known as gravitational force, which we will discuss in the chapter number 8. So यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, हाइट h पे था, एक कोई फोर्स है अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट उस हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, मीन्स उसकी ये इनिशियल पोजीशन थी और ये उसकी क्या है? फाइनल पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, मीन्स एंगल आपका क्या? 0 है, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। So this work done can be written W, to W is equal to Fs cos theta. This theta is 0, so if this is 0, this is 1. So now we have to put the value of F. F क्या होगा आपका? So we all know that this F is equal to ma when an object is moving along the ground.
But when an object is moving in upward direction or in the downward direction, this A is acceleration. It is changed into g, which is known as acceleration due to gravity. So this F can become mg. So W comes out to be mg. What is this S? Previously S, we are moving along the ground, so this is S. But now in that case, this S is written as H. So it comes out to be mgh. So this is work done. Work done is stored on the form of energy. Which energy? Potential energy. So your potential energy comes out to be mgh. Clear? So this is your positive. Next case. Now an object is on the ground. It is moving in upward direction. Reach at that point. Again, this height is h. So now again we know that the earth, if this object is moving in upward direction, but earth pulling that object in the downward direction by the gravitation pull, gravitation force. So the force in the downward direction, but object is moving in the upward direction. In that case, the direction of force and the displacement is opposite to each other. If this displacement and the force direction is opposite to each other, we all know that the theta is 180 degree. So again W is equal to F dot S cos 180, and we know that cos 180 आपको होता है कितना? -1. This is minus Fs. Again we will put the value of F. Again we will put the S. So it comes out to be minus K mgh. So this energy is negative. तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी है वो आपकी होगी पॉजिटिव, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ रहा है? नीचे आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो उस केस में आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी आपकी माइनस. तो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन द शेप. तो इसके अंदर हम लेके चलेंगे स्प्रिंग का केस. सो नेट वी सी नेक्स्ट. So now let's start the elastic potential energy of a spring. So first of all, this is a fixed position. ये कोई fixed point है and there is a spring. ये आपका कोई spring है. Now it is at its normal position. ये spring आपका normal position में था. Means this is the normal position of the spring. Now the spring is stretched from its normal position to a displacement x. इस स्प्रिंग को हमने खींच दिया, कितने डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल से x. तो वी ऑल नो दैट कि जब इस स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा. रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या? जो उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना चाहता है. क्लियर? और जो ये रिस्टोरिंग फोर्स आपका होगा ये उतना ही होगा जितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है. Clear? So now when we left that spring from this position, now that spring compressed like this. तो ये भी आपका x है. Means जब स्प्रिंग को खींचा तो वो इस पोजीशन में आ गया. Clear? By displacement of x. जब उसको हमने छोड़ा तो that spring compressed by a displacement of x. मतलब जितना वो कंप्रेस होगा, जितना वो स्ट्रेच होगा उतना उसने इन बैकवर्ड डायरेक्शन उसने क्या किया? कंप्रेस किया. वही बात है कि जो इसने अपनी शेप को रीगेन किया या जो आपका ये कंप्रेस हुआ, दिस इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. यहां पे एक आपका लग रहा है एफ रिस्टोरिंग फोर्स. अब जो रिस्टोरिंग फोर्स आपका है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट. मींस जितना आप स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. अगर स्प्रिंग को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते थोड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता. क्लियर? अगर स्प्रिंग को हम ज्यादा खींचे तो उसके अंदर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता. तो दिस एफ रिस्टोरिंग किसके प्रोपोर्शन है? वो डिस्प्लेसमेंट के. तो दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी विल रिमूव. दिस कम्स आउट टू बी एफ आर इज इक्वल टू के एक्स. दिस के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट. अब इस वैल्यू को, इस के को हम पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर 9 के अंदर, जहां पे हमने इलास्टिसिटी को डिस्कस करना है. दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज एफ बाई एक्स होता है आपका. सिंपल सी बात है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. क्लियर? अब हर एक स्प्रिंग का ये अलग अलग होगा.
क्लियर। अब हमने एक बात और यहां से नोट करनी है कि जितना रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे प्रोड्यूस हुआ है उतना ही यहां पे अप्लाइड फोर्स था। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से, ये आपकी हुई है एफ अप्लाइड की वजह से। अब वही बात है कि जितना ज्यादा आपका एफ अप्लाइड होगा उतना ही ये स्प्रिंग आगे स्ट्रेच हुआ, और आपको पता है उतना ही यहां पे क्या डेवलप होगा, एफ रिस्टोरिंग। मींस कहीं ना कहीं जो आपका एफ अप्लाइड है वो कहीं ना कहीं इक्वल था किसके, रिस्टोरिंग के, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। मींस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां से जब हम देखते हैं कि जो आपका अप्लाइड फोर्स था या जो रिस्टोरिंग फोर्स था, अब वही बात है कि डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में थी। मींस हम इसको खींच इस डायरेक्शन में, सुनना अभी ध्यान से, कि जो डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। मींस जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है और जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हो तो यहां पे साइन आएगा माइनस का। मींस एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स हुआ। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ है। क्लियर। अब आप जब किसी स्प्रिंग को एक बार स्ट्रेच करके छोड़ देते हो, ये नहीं कि उसने, बट इट स्टिल वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करता रहता है ऊपर और नीचे। अब जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स आगे। अब सिंपल सी बात यहां पे कहते हैं, ये स्प्रिंग आपका इस पोजीशन पे आ गया। अगर ये स्प्रिंग इस पोजीशन पे आया, लेकिन नॉर्मल पोजीशन तो यहां पे है ना, तो इस नॉर्मल पोजीशन के ऊपर जाने के लिए स्प्रिंग को आगे की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में कहां है, पीछे की तरफ है। मीन जो रिस्टोरिंग फोर्स है और वो डिस्प्लेसमेंट वो एक दूसरे के अपोजिट है, और अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स भी एक दूसरे के अपोजिट है। अप्लाइड मींस इसको हम कह देते हैं एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू आई है वो आपके लिए माइनस के एफ आर, और जो आपका एफ आर है दैट इज ऑफ माइनस के एक्स। तो एफ एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी प्लस के एक्स। अब ये हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि हमने निकाली एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इफ यू वांट टू फाइंड द एनर्जी वी सिंपली हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमें चाहिए एफ। एफ जो कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से फोर्स लगा है, वो किसके को लगा, वो आ गया के एक्स के को लगा। सो नाउ अगेन वी विल से दैट कि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल, मान लेते हैं कि इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो होगी dx। मींस ड्यू टू दैट फोर्स देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट dx। सो अगर dx डिस्प्लेसमेंट, तो dw इज कम्स आउट टू बी f एक्सटर्नल इनटू में dx। अब जो आपकी बॉडी थी वो हम कह देते हैं कि अगर ये वाली पोजीशन आपकी x है और ये 0 है, तो आपकी जो बॉडी है वो 0 से लेके x तक डिस्प्लेस करी। हमने बीच में से कहीं पे क्या ले लिया, dx ले लिया। So now we have to integrate it from 0 to x, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था वो 0 थी मीन पोजीशन, और कितना आ गया x, हमने स्मॉल का ले लिया। तो आपको पता है अगर ज्यादा बड़े का निकालना है तो we will integrate it. So now integrate it, put the value, so it comes out to be kx into में dx 0 to x, this become w। अब ये k तो आपका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब x की करनी है फिर से, x into में dx। अब x की dx के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो आपको पता है x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। तो हियर कम्स आउट टू बी x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, लिमिट 0 to x। तो एक बार x पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो बिकम हाफ के x स्क्वायर माइनस 0, दिस इज हाफ के x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन। अब ये आपका किसके इक्वल है, ये आपका आ गया वर्क डन के इक्वल। अब अगर ये वर्क डन के इक्वल है तो वी नो दैट दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज इक्वल टू एनर्जी, विच एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे वो ग्राफ क्या है देखते हैं, सभी ध्यान से देखना क्या है ग्राफ। तो अब मैं ग्राफ लोड कर रहा हूं बिटवीन द एनर्जी एंड एक्स, डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर। तो अगर आपका एक्स हो जाता है मैक्सिमम,
मीन्स अगर यहाँ पे आपका x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आपको अगर x जितना बड़ा होगा एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वी से दैट कि हियर इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर जाके आपका जो x था वो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या मैक्सिमम। अब जैसे जैसे स्प्रिंग पीछे की तरफ आएगा क्लियर अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, नॉर्मल पोजीशन के ऊपर, तो x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी एक टाइम जीरो भी हो जाएगी। मींस इस पॉइंट के ऊपर आके अगर आपका x जीरो हो जाता है तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। नाउ अब आपका स्प्रिंग पहले कहां था, यहां पे था, स्ट्रेच हुआ, अब वो फिर से कंप्रेस होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। x फिर से इंक्रीज करेगा, लेकिन किस में, अगर ये आपका ओरिजिन था इधर पॉजिटिव था तो इधर क्या नेगेटिव, तो नाउ x अगेन इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मींस योर एनर्जी अगेन बिकम मैक्सिमम विद नेगेटिव साइन। अब है तो मिनिमम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर हम कह देते हैं कि यहां पे आके आपका x फिर से क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो ये आपका पॉइंट आपने समझा कि जब आपका ऑब्जेक्ट आपकी नॉर्मल पोजीशन पे होगा तब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एनर्जी क्या है, जीरो। और जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा उससे ज्यादा वो नहीं खींचेगा, तो इस केस में आपका x क्या होगा, दिस इज x इज मैक्सिमम। अगर x मैक्सिमम है तो एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट व्हेन स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो कंप्रेस करेगा तो फिर से उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट किससे, नॉर्मल बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, so your energy become negative. This is the graph for the elastic potential energy with x, ki how the value of x vary with elastic potential, how the value of elastic potential energy vary with x. So now for today it is over. In the next part we will discuss more about this chapter. We will discuss about the power. So see this video completely, fully. You have to see the video. If any doubt came, discuss with me, we will solve that doubt. So वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद एट द एंड आपने अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर कोई डाउट है तो उसको डिस्कस करना है। क्लियर? सो नाउ दिस इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।